जो कि मैंने किया, इस वजह से मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया. देन यू कैन हैव एन एज ओवर द अदर्स इन द जीडी एंड यू आर एबल टू ड्राइव योर इंटरव्यू इन योर डायरेक्शन. Hi everyone, what's up? Welcome back to my channel and welcome back to another video. So as you've read in the thumbnail and the title already, I am back with another video that is going to be very helpful for MBA aspirants. All because the previous video that I uploaded was related to the same topic. You guys showed so much love and appreciation to that video that I could not make this video. अभी वैसे भी B schools का इंटरव्यू सीजन चल रहा है, एडमिशन सीजन चल रहा है, सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू अपलोड दिस टाइप ऑफ अ वीडियो. दिस इज द टाइम जब सब बच्चे अपने GDPI की तैयारी कर रहे होते हैं. मेरी लास्ट वीडियो जो कि मेरे फर्स्ट 6 months ऑफ बी स्कूल एक्सपीरियंस से रिलेटेड थी, उसके अंदर मुझे कमेंट्स में इतने सारे डाउट्स आए. पर्सनली पीपल हैव रीच्ड आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल टू आस्क मी सो मेनी डाउट्स रिलेटेड टू द GD और द PI की प्रिपेयर कैसे करें, आपका एक्सपीरियंस कैसा था, इस परसेंटाइल पे ये कॉलेज मिलेगा कि नहीं. देयर वर सो मेनी डाउट्स that I thought that I should create a separate video about how to prepare for PI or GD, like based on my experience, so that can act as a guide for you. This video is going to be all about 2 interviews that I converted. Actually I converted 3, but I don't want to talk about the third one because more or less same चीज ही आएगी. So I feel that talking about 2 is enough. I'm going to talk about Ford School of Management का interview and LBSIM का interview, that is लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. इन दोनों के इंटरव्यूज के बारे में मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूंगी in today's video. So if that's something that you feel will be helpful for you guys, make sure to watch this video till the end. But before that, if you're seeing this video for the very first time, hi, I'm Shivani and I make beauty, fashion and lifestyle videos here on YouTube. Sometimes I also make MBA related videos to help students like you. Make sure to subscribe to my channel if you haven't already. I'm sure you'll have a great time here. Hit that bell icon as well so that every time I upload a video, you get notified. And now without any further ado, let's get into the video. Right, so before moving forward, let me tell you something about my profile. Because जो interviews होते हैं वो majorly आपकी profile and आपके background के basis पर होता है. Everybody has a different interview. That is why it is called as personal interview. सबका same नहीं होता. So for you to understand my interview better, you need to know my profile. I am born and brought up in Delhi itself. I studied in St. Mark's Girls Senior Secondary School, and after that I pursued my graduation from Delhi University Keshav Mahavidyalaya. I did BCom honors, and along with BCom honors I was also pursuing chartered accountancy. I cleared group 1. After that I gave 2 attempts of group 2, but then I quit it because I did not see my future as a CA. So, जब मेरी CA चल रही थी उसी टाइम पर मैंने कंटेंट क्रिएशन इंस्टा पर स्टार्ट कर दी थी. मेरी ग्रेजुएशन जिस टाइम पर खत्म हुई थी उसके कुछ टाइम बाद ही आई क्विट CA. सो फॉर माय मास्टर्स आई परस्यूड MA इंग्लिश फ्रॉम IGNOU. Yes, this is going to be a surprise for you. ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, but MBA is my second masters. My first masters is MA English. I pursued that because CA quit करने के बाद MBA मेरे दिमाग में दूर दूर तक उस टाइम पर नहीं थी. मुझे पढ़ाई नहीं छोड़नी थी, मुझे बस CA छोड़नी थी. मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश था स्कूल में. My mother enrolled me into a master's course and I chose English. उस टाइम पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी ऐसे क्यों करा रही है, but now I am so thankful to her क्योंकि मेरा वो गैप ईयर नहीं आया उसकी वजह से. After enrolling myself into that, I started my YouTube channel. एंड यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के बाद एक बिजनेस भी स्टार्ट किया था विच इज नाउ नॉट फंक्शनल. विद द हेल्प ऑफ माई ब्रदर आई स्टार्टेड अ बैग्स बिजनेस बाय द नेम ऑफ द प्लस स्टाइल. आई रन इट फॉर 3 to 4 months, बट आफ्टर दैट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, सो आई डिसकंटिन्यूड दैट. एंड साइड बाय साइड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर कैट. तो मेरे कैट की प्रिपरेशन, दैट बिजनेस एंड माई यूट्यूब ऑल वॉज गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली, एंड MA इंग्लिश एज वेल, ये सब साइमल्टेनियसली चल रहा था. And now I'm here pursuing MBA. This was about my background. मेरा बहुत एक diverse background है because there was a point when I was super confused about my career. If you can relate with me about a diverse background or like being confused and all, don't worry. आप ज़्यादा परेशान मत हो. आपके सामने हूँ मैं एक इतने बड़े question mark background के साथ भी. मैं आज मैं एक टॉप B स्कूल में हूँ डिस्पाइट ऑफ हैविंग सच अ डाइवर्स बैकग्राउंड. देयर इज ऑलवेज होप फॉर पीपल लाइक अस जो दिल की सुनते हैं. So that was all about my background. Now I'm going to start with my interview at LBSIM. पहले मेरा वहाँ पर इंटरव्यू हुआ था. I remember it happened on 20th February, which was like 11 days after my real brother's wedding. I still remember that day fresh as hell. I was super nervous. Even though इससे पहले मैं न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का इंटरव्यू दे चुकी थी. Deep down I knew that इसका स्टैंडर्ड इज वे मोर देन उसका स्टैंडर्ड. तो मुझे थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा डर लग रहा था.
सबसे पहले मेरा हुआ था वहां पर जीडी को मुझे एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक मिला था. इट वाज नॉट रिलेटेड टू जीके, सो आई वाज एबल टू मैनेज इट. माय टॉपिक वाज डेथ पेनल्टी फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, फॉर और अगेंस्ट. इसके ऊपर जीडी थी एंड आई डिड दैट प्रीटी वेल, इवन दो आई डिड नॉट हैव मच पॉइंट्स. जब हम सोच रहे थे मेरे दिमाग में ज्यादा 1-2 पॉइंट्स ही आ रहे थे, बट देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट इफ यू नो देम देन यू कैन हैव एन एज ओवर द अदर्स इन द जीडी. आई एम गोइंग टू टेल यू दोस थिंग्स. तो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो सोच ही लो उस टाइम पर बोलने के लिए, बाकी आपको कॉन्टेक्स्ट के साथ समझ आ जाता है. Try to be the first one to open the GD, but if you feel that you don't have a solid enough point, आप first 4 to 5 people के अंदर बोल दो and make your presence known over there. If you do not have points, listen to what they say. Do not just change their language and repeat their points, but either try to agree with them and then add your own point, or counter them, contradict them, respectfully contradict them, so that you get that attention of the panelist in a GD. While speaking, you are maintaining eye contact not with the panelist. Do not look at the panelist. ये सबसे बड़ी गलती करते हैं जीडी में. You have to ignore the panelist, जैसे कि panelist आपके सामने बैठा ही नहीं है. आपके जीडी में जो आपके आसपास लोग होते हैं, आप उनको देखो, जो बोल रहे हो उसके साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखो. एंड जब आप खुद बोल रहे हो तो आप सबकी तरफ देखकर बोलो, पैनलिस्ट को छोड़ के, बिकॉज ग्रुप में डिस्कशन है. मेक श्योर दैट यू आर मेंटेनिंग अ प्रॉपर बॉडी पोस्चर. अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान जरूर रखना एंड अपने फेशियल एक्सप्रेशंस का ध्यान जरूर रखना. एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग बोल रहे हैं, आप अपने पॉइंट बोलने के लिए अपने नोट्स में देख रहे हो क्या. ऐसे नहीं करना, डिस्कशन की तरह शो करना है. तो आप चाहे एक्टिंग कर लो कि आप दूसरे बंदे की सुन रहे हो, आप नॉट करो, और नॉट करते करते आप दिमाग में अपना पॉइंट फ्रेम कर रहे हो, बट आपको प्रिटेंड ऐसा करना है कि आप सुन रहे हो. इन सब पॉइंट के लिए आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करती है. ऑफ कोर्स टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट है तो बेस्ट है, बट देयर कैन बी जीडीज अबाउट टॉपिक रिलेटेड टू जीके, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, या फिर कुछ टेक्नोलॉजिकल चीज से रिलेटेड. फॉर एग्जाम्पल आजकल एआई बहुत ट्रेंड कर रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ट्रेंड कर रही है. देयर इज अ वेबसाइट नोन एज MBA यूनिवर्स. उस पर बहुत सारे जीडी से रिलेटेड आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, बी जनरल और जीके रिलेटेड. तो आप वो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा. These were some general things about GD. Now I will move on to my actual experience at LBS IM. So my GD went good. I was in the first few speakers. I was speaking for my topic, तो मैंने काउंटर भी किया लोगों को. एंड बीच में फिश मार्केट बन रही थी, तो मैंने थोड़ा सा उसको काम डाउन भी करवाया. सो दैट ऑल्सो एड्स टू योर पॉइंट्स. एक इमेज अच्छी बनती है उससे. एंड आई वॉज द वन हु कंक्लूडेड द जीडी. मेक श्योर कि अगर आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप कंक्लूड जरूर करो जीडी को. किसी ना किसी तरह से आपको पैनलिस्ट की अटेंशन चाहिए. So yeah, this is how I did my GD. It went really well. And then it was the time for personal interview. मैंने 3 जगह personal interview दिए and तीनों जगह सेम एक पैटर्न बन गया था because of my career. 80% और 90% of my interview revolved around my content creation वाली life and my diverse choices. And academics और GK के लिए उनके पास टाइम इतना कम बच जाता था. Hardly 10% of my interview used to revolve around that. उसके बाद टाइम खत्म हो जाता था. So I won't call it luck because वो 90% भी मेरे हार्डवर्क के अराउंड. I'm sorry if you're getting strange noises. किचन में खाना बन रहा है and I cannot help but film this video right now because अभी रात के 10 बज रहे हैं. मुझे सुबह हॉस्टल के लिए निकलना है, पैकिंग भी करनी है, तो मैं ये शूट अभी खत्म करूंगी. Coming back to the topic, वो I won't call it luck क्योंकि वो भी मेरे हार्डवर्क की वजह से ही वो 90% ऑफ द डिस्कशन मेरी लाइफ चॉइसेस के अराउंड रिवॉल्व करती है. मेक श्योर कि आप जब इंटरव्यू में घुसो, आप गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी ग्रीट करो एंड देन आस्क दैट मे आई हैव अ सीट एंड very gracefully you sit down and try to keep something in your hands. एक डॉक्यूमेंट की फाइल या कुछ अपने हाथ में रखना so that you don't get awkward, आपके हाथ awkward ना हो जाए. So there were 3 panelists in my interview and 2 of them were females, 1 of them was a male professor. So the first thing that they asked me was of course my introduction, and introduction is something जो आपसे हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा, and introduction is something that will decide how the rest of your interview will go. Make sure that you add something unique to your introduction that drives their attention towards you. अपने इंट्रोडक्शन को बहुत ज्यादा लेमैन मत रखना कि मैंने ये किया बस खत्म. अब वो सब तो आपको बताना ही है. आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपना बैकग्राउंड बताओगे एंड उसके अलावा कुछ अपने बारे में यूनिक, कुछ इट शुड ऑल्सो मेक सेंस बट समथिंग यूनिक दैट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम अदर्स. इफ यू हैव दैट,
try to include that in your interview. For example, in my case, I always ended my introduction with the fact that I'm a YouTuber, I'm a content creator. That sets me apart from everybody else. वो आप अपने introduction में बताओ and make sure to place it at the end. Because अगर आप end में रखोगे ना, and they will be curious about it, then they will start asking more questions about it, and the way you answer it, आप ऐसे answer करो जिससे आपको और वो cross questioning करे. एंड दिस इज गोइंग टू बी अ टॉपिक जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो. तो वो आप जितना मर्जी आपको उसके ऊपर ग्रिल करे, आप यू विल बी एबल टू हैंडल इट. वो इंट्रोडक्शन का एंड आपके इंटरव्यू का ड्राइविंग फोर्स बन जाता है. यू आर एबल टू ड्राइव योर इंटरव्यू इन योर डायरेक्शन. अगर स्टीयरिंग व्हील इंटरव्यूअर के हाथ में चला गया तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी. इंट्रोडक्शन में आपके पास चांस होता है इंटरव्यू को अपनी तरफ ड्राइव करने का. दे आस्क्ड मी सम टेक्निकल क्वेश्चंस अबाउट इट. दे आस्क्ड मी मैं वो क्यों कर रही थी. एक जो उनके साथ वाले पैनलिस्ट थी, उन्होंने चैनल उसी टाइम खोल लिया. इवन आज में कौन सी वीडियो, किस तरह की वीडियो पे आपको सबसे ज्यादा व्यूज आए, बिजनेस एस्पेक्ट क्या है इस चीज का, क्यों करते हैं लोग कंटेंट क्रिएशन. दे आस्क्ड मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग इट दैट आई कुड हैंडल वेरी वेल. फंक्शनैलिटीज ऑफ यूट्यूब वो सब मैंने अच्छे से टैकल कर लिया. उसके अराउंड अच्छी खासी कॉन्वर्सेशन चली. दे सॉ दैट मैं बहुत कॉन्फिडेंटली हैंडल कर रही हूँ. तो उसके बाद दे ट्राई टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर मी. अगर आपका इंटरेस्ट इन सब चीजों में था तो आपने सीए पर इतना टाइम वेस्ट क्यों किया. मैंने फिर उनको बोला कि आई वुडंट कंसिडर दैट टाइम दैट आई इन्वेस्टेड इन सीए एज अ वेस्ट ऑफ टाइम. द काइंड ऑफ एग्जाम्स दैट आई डिड क्लियर व्हाइल आई वाज परस्यूइंग सीए, इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एफर्ट. आई गॉट टू नो अबाउट माय ओन कैपेबिलिटीज कि मैं किस हद तक जा सकती हूँ. मैंने कितनी मेहनत करी थी सीए में ही मैं जानती हूँ. I quit CA not because of the fear of effort. अगर fear of effort होता तो मैं अभी ये सब कर ही नहीं रही होती. But I quit CA because of lack of interest. तो मैंने सही टाइम पर एक डिसीजन लिया ताकि मेरे को अपनी पूरी लाइफ लॉन्ग रिग्रेट ना करना पड़े. So I explained this perspective to them and they liked it. And they sort of realized that I am a more creative person जिसका इंटरेस्ट ज्यादा आलतू फालतू की चीजों में है, पढ़ाई में थोड़ा कम इंटरेस्ट है. Then the panelists asked me that I feel that you're a very creative, a lively, a jolly person. And MBA में ऐसा कुछ नहीं होता. MBA तो बहुत बोरिंग तरह. वो MBA के बारे में ऐसे बोलने लगी कि MBA तो बहुत बोरिंग है, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, बुक्स वगैरह वाली लाइफ है. तो आप कैसे हैंडल करोगे, आप मैनेज कैसे करोगे इतना. तो मैंने at that time I explained that this is not the first time that I'm multitasking. I have been multitasking all through my life. I had an additional subject in class 9th and 10th. Along with 11th and 12th I was preparing for the entrance exams जो कि 12th के बाद होते हैं. तो तब भी मेरी multitasking थी. बीकॉम के साथ मैं सीए कर रही थी, वो भी मेरी मल्टीटास्किंग थी. परस्यूइंग मास्टर्स इन इंग्लिश, आई वाज हैंडलिंग अ स्मॉल बिजनेस, आई वाज हैंडलिंग माय ओन चैनल. सो आई हैड बीन multitasking and I am so passionate about content creation that I remember saying them this dialogue that I am so passionate about content creation that I can devote my time into MBA as much as it requires, and after that I can come back home and edit my videos with tired sleepy eyes and then again go to college the next day. And I can do that because when वो सब मैं फेंक नहीं रही थी, I am sticking by those words, I am still putting in efforts. अभी तक अच्छा चल रहा था, मैं सब कॉन्फिडेंटली आंसर कर पा रही थी. आफ्टर दैट मेरा इंटरव्यू थोड़ा ऐसे हो गया था. सो अ पैनलिस्ट आस्क्ड मी दैट बीकॉम में आपका थोड़ा सा ग्रेड ड्रॉप है, क्यों है. उनके पास सारे रिकॉर्ड्स होते हैं तो बीच में कहीं थोड़े मार्क्स मेरे कम आए होंगे, तो उससे रिलेटेड दे क्वेश्चन. मुझे तो ध्यान भी नहीं था कि भाई मेरे मार्क्स कम कहाँ आए थे. बीकॉम ऑनर्स पे कौन फोकस करता है, स्पेशली सीए के साथ. तो बीकॉम तो मैंने निग्लेक्ट करी हुई थी, मुझे ध्यान नहीं था मेरे नंबर कम किस में थे, क्यों थे. बट इन सिचुएशंस लाइक दीज यू हैव टू यूज योर कैपेबिलिटी टू थिंक ऑन योर फीट and answer it in a way that it does not look cooked up. I told them that COVID के टाइम में circumstances ऐसी हो गई थी जिस वजह से मैं नहीं कर पाई थी and they bought it. उसके बाद मुझे थोड़ा ग्रिल करने पे उतर आए थे, तो उन्होंने बोला कि आपका, हमें लगता नहीं है कि आपका पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट है, बट स्टिल अपना कोई फेवरेट सब्जेक्ट बताओ. तो मैंने अकाउंट्स बोल दिया. उसमें उन्होंने कुछ मुझसे ना कुछ टेक्निकल चीजें पूछ ली, उसका आंसर मुझे नहीं आ रहा था, मैं ब्लैंक हो गई थी. आई सेड आई डोंट नो, आई विल गो रीड अबाउट इट. अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप उनको ये अश्योरेंस जरूर दो कि आप बाद में उसको जाकर पढ़ोगे. तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप अपना कोई भी फेवरेट टॉपिक उसका बता दो. एट दैट मोमेंट मैं ऐसे ब्लैंक हो गई थी, भाई मेरे दिमाग से सारी अकाउंट्स 11th 12th की पढ़ी उड़ गई. तो मुझे कोई टॉपिक ही नहीं याद आ रहा था. ऑन टॉप ऑफ माई हेड आई कुड ओनली थिंक अबाउट कैश फ्लो, क्योंकि वो 12th में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था हमने, तो मैंने कैश फ्लो बोल दिया. देन दे आस्क्ड मी कैश फ्लो क्या होता है, देन वो तो मैंने आंसर कर दिया था. उसके बाद दे आस्क्ड मी सम जनरल नॉलेज क्वेश्चंस रिलेटेड टू माय ओन फील्ड. दे आस्क्ड मी यूट्यूब कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है. I did not know it. I am admitting it openly. I did not know it.
देन दे आस्क्ड मी सीए में कोई उस टाइम पर लेटेस्ट अपडेट कोई आई थी, करिकुलम में थी या कोई लॉज या रूल्स में कुछ था. I was not aware about it. That was something that showed that मुझे general knowledge नहीं है. And that is where my interview ended. They said now you can go. So yeah, मेरा interview शुरू अच्छा हुआ था. Last तक आते आते थोड़ा खराब हो गया था. But then your girl made it into that college because 90% तो वो अच्छा ही जा रहा था. Last में 10% थोड़ा खराब हो गया. So इस interview से lesson ये निकलता है कि apart from your academics आप जो भी बताओ आप उससे 100% वेल वर्स्ड होने चाहिए हो. फॉर एग्जाम्पल अब मैंने यूट्यूब का बताया तो उन्होंने मुझसे यूट्यूब की जीके पूछ ली जो मुझे नहीं आती थी. तो मेक श्योर दैट यू आर वेल वर्स्ड इन एंड अराउंड अबाउट दैट टॉपिक एंड आप जो भी डिलीवर करो, जो भी वो क्वेश्चन करेंगे. चलो ये सब वैसे मैं अपने 4 के इंटरव्यू के बाद कंक्लूजन बताऊंगी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंटरव्यू. मैं उस कॉलेज के इंटरव्यू के बारे में बात करने वाली हूँ जिस कॉलेज में मैं आज पढ़ती हूँ. फोर्थ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का इंटरव्यू था ये एंड दिस इंटरव्यू वाज एन ऑनलाइन प्रोसेस. नाउ दे हैव चेंज्ड इट टू बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. आई एम इन द एडमिशन कमेटी ऑफ माय कॉलेज. तो चाहे बच्चे ऑफलाइन आ रहे हो चाहे ऑनलाइन आ रहे हो, हमसे तो वो मिलते हैं कि हम एडमिशन कमेटी हमारे कॉलेज के. फेज 1 चल रहा है, उसमें ऑफलाइन इंटरव्यूज हो चुके हैं, अभी ऑनलाइन चल रहा है. उसके बाद फेज 2 शुरू होएगा, उसमें भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होंगे. बट लास्ट ईयर मेरे टाइम पर सिर्फ ऑनलाइन इंटरव्यूज ही होते थे एंड मेरे टाइम पर बिजनेस अवेयरनेस क्विज, एक्सटेम्पोर और पर्सनल इंटरव्यू ये था उनके एडमिशन प्रोसेस में. This time they have removed the business awareness quiz. That is something that does not happen anymore. And GD कोई last time में नहीं थी, इस time में नहीं है. But still I am going to tell you about the business awareness quiz because I want to emphasize on the importance of luck and having faith. जैसे कि नेम से पता लग रहा है बिजनेस की जनरल नॉलेज से रिलेटेड वो आपको कुछ क्वेश्चंस, आपको MCQ क्वेश्चंस पूछते हैं and they themselves said that give it a shot even if you don't know. There's no negative marking. जो आपको बेस्ट आंसर लगे you have to tell them that. The first question that they asked me, I do not remember it. वो तो मैं उसी दिन भूल गई थी तो मुझे नहीं पता, मैं वेरीफाई भी नहीं कर पाई कि उसका आंसर ठीक था कि नहीं. Then the second question that they asked me the name of a particular minister and when I cross verified my answer after the interview वो मेरा तुक्का ठीक निकला. And the third question was regarding some full form and I don't remember वो किस चीज़ की full form थी but options में से मुझे जो सबसे ज़्यादा सेंस लगी जिस आंसर की मैंने वो आंसर किया and then I checked it later वो ठीक निकला. So yeah, this is how my BAQ went. एक तो पता ही नहीं बट बाकी 2 क्वेश्चन मेरे ठीक निकल गए, so 2 on 3 is a good score. Then I had my extempore. This was something that did not go as I expected at all. I was so confident कि extempore तो मैं नेल कर ही दूंगी. बाकी बच्चों के मैंने एक्सपीरियंस में इस तरह के टॉपिक्स पढ़े थे कि वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए कि नहीं और ऐसे टाइप के टॉपिक्स जो भी ट्रेंडिंग थे उस टाइम पे. जो टॉपिक मिला था दैट वाज पाकिस्तान इकोनॉमिकल टर्मोइल एंड इट्स रिलेशनशिप विद इंडिया. And I am so ashamed to admit it that I did not know anything about that topic. मैं जितना ज्ञान अभी लोगों को देती हूँ कि अपनी जनरल नॉलेज पर फोकस करो इंटरव्यूज वगैरह के लिए, वो मैं इसीलिए देती हूँ क्योंकि मुझे खुद को नहीं थी एंड इस वजह से मुझे प्रॉब्लम होती थी इंटरव्यूज एंड GDs में. I could not speak a single word in my extempore. I was completely blank. 60 seconds I was just staring at the screen. They asked me कि try to कुछ तो बोलो but एक लाइन बोली मैंने and then I was blank. I told them that I do not know anything about this topic and at that time I lost all hopes, but still I did not let the experience of the extempore ruin my interview. मैंने इंटरव्यू में इतने कॉन्फिडेंटली बात करी एज इफ मैंने extempore तो बहुत ही अच्छा दिया हो. Deep down I was telling myself that extempore की weightage सिर्फ 5% की होती है. I still got this and I did get it. So yeah, again there were 3 panelists. All 3 of them were male. बट अभी जो इंटरव्यूज चल रहे हैं हर पैनलिस्ट में एक ना एक फीमेल जरूर बैठी होती है जितना मुझे पता है. जो मैंने 4 का फॉर्म भरा था तो मैंने उसमें बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से अपने बिजनेस के बारे में बताया हुआ था. दैट वाज द प्लस स्टाइल, अबाउट माय कंसंट्रेशन, माय ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफिकेशन, माय MA इंग्लिश. मैंने सब कुछ उसमें डिटेल में उनको बता रखा था. मुझे उसके अकॉर्डिंग अच्छे से ग्रिल किया गया. 4 का मेरा पूरा इंटरव्यू मेरी लाइफ चॉइसेस के ऊपर ही चला था एंड मेरी लाइफ चॉइसेस इतनी डाइवर्स है कि उनके पास एकेडमिक्स और जनरल नॉलेज के लिए जगह ही नहीं बची थी. इसी के अराउंड ही चलता रहा एंड 15 मिनट वहीं खत्म हो गए. मेरे लिए बहुत अच्छी बात है बट सबके साथ ऐसा नहीं होता. वो एकेडमिक्स एंड GK तो बी स्कूल के इंटरव्यूज का कोर पार्ट है ही. सबका बैकग्राउंड मेरी तरह नहीं होता तो इसलिए सबका इंटरव्यू भी मेरे जैसा नहीं होगा. फर्स्ट पैनलिस्ट आस्क्ड मी अ लॉट अबाउट प्लस स्टाइल एंड ही वाज वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स द बिजनेस एस्पेक्ट.
Whatever they asked, I answered them. I don't remember exactly उन्होंने बिजनेस के बारे में पूछा क्या था, क्योंकि मेरे इंटरव्यू को 1 साल हो गया है, तो मुझे बिल्कुल याद नहीं उन्होंने मुझसे पूछा क्या था. Then he asked me about influencer marketing and उससे रिलेटेड टेक्निकल चीजें, मेरे पर्सनल कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड नहीं, तो एक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के तौर पे उन्होंने मुझसे काफी क्वेश्चंस पूछे. And then he asked me that I pursued a British Council certification. Why did I do that? I told him that the way I'm speaking right now, I was not this confident. I was a very shy person and I did not want that shyness to hinder my growth. So that is why I joined British Council to build my confidence. And by this answer, he was pretty impressed because he himself said that you had that self-awareness and you worked on your growth. So that's a good thing. So उस time पर मैं बहुत खुश हो गई. But then the next panelist came with an intention of grilling me. Considering my life choices, that was not a surprise. That was already expected. He particularly used the word confused. कि आप CA कर रहे थे, then आप MBA कर रहे हो, तो आप अपने करियर को लेके बहुत confused लग रहे हो. He used that to kind of attack me. By the word attack, I mean that वो ऐसी चीजें करते हैं to see that आप ये situation tackle कैसे करते हो. I explained that my decision was well thought. मैंने अपने reasons बताए. I think मैं वो बोल चुकी हूँ, तो मैं वो repeat नहीं करूँगी. And I explained to them how MBA aligned with my long-term goal. And even though अभी मैं अलग-अलग चीजें कर रही हूँ, फ्यूचर में जाके वो सब चीजें एक में कन्वर्ट करना चाहती हूँ. मैं बीट माई बिजनेस, बीट माई कंटेंट क्रिएशन, बीट MBA, ये सब अलग अलग चीजें मुझे एक गोल की टुवर्ड्स लेकर जा रही है. ये मैंने उनको एक्सप्लेन किया एंड देन दे वर सैटिस्फाइड विद माय आंसर. एंड देन केम द थर्ड पैनलिस्ट. द थर्ड पैनलिस्ट आस्क्ड मी दैट यू आर एंगेज्ड इन सो मेनी एक्टिविटीज, बट ये बीच में MA इंग्लिश कहाँ से आ गई? बिकॉज अगेन डाइवर्स बैकग्राउंड है. बिलीव यू मी, जब से मैंने कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, मुझे तब से बात खाई जा रही थी कि मैं अपना बाकी सब तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ये जो मैंने आउट ऑफ द ब्लू इंग्लिश चूज कर ली है कॉमर्स के बीच में, ये कैसे एक्सप्लेन करूंगी. I saw this coming. I predicted this question because it is pretty questionable. But yeah, I explained them that after my graduation, when I decided not to go ahead with CA, I had time in my hands and I did not want to waste that time. During my school days, English was my favorite subject. I wanted to develop my skills in every aspect possible. So in order to make that time productive, I decided to go for MA English. That was actually the real answer. मैंने कोई झूठ नहीं बोला उनको, and they liked that answer. Then he asked me about the challenges of influencer marketing. उसमें मैंने उनको बताया कि ऑडियंस का एक ट्रस्ट गेन करना, स्टार्टिंग में एक वो कम्युनिटी बिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है. वंस यू गेन दैट ट्रस्ट, देन आपका ग्राफ ऐसे जाता है, बट स्टार्टिंग में टाइम लगता है. आई क्लियरली रिमेम्बर दैट. उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा था, बट मुझे ये नहीं याद कि उस क्वेश्चन में क्या था, बट वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से रिलेटेड ही था. या विद दैट माई इंटरव्यू एंडेड. देयर वाज नो स्पेस फॉर एनी एकेडमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन और जनरल नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन इन दिस वीडियो. अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा ये वीडियो देखने का फायदा क्या हुआ? अगर इसका इंटरव्यू इतना अलग है, इसके इंटरव्यू जैसा हमारा इंटरव्यू तो होगा नहीं, तो मेरा ये वीडियो देखने का फायदा क्या हुआ? टेंशन मत लो, अगर मैं आपको इतना टाइम ले रही हूँ तो डेफिनेटली मैं वेस्ट तो नहीं करने वाली. वो फायदा आपका ऐसे होता है कि इससे ये पता लगता है कि कॉन्फिडेंस कितना जरूरी है. आई शोड देम द रीजन व्हाई आई वांटेड टू परस्यू MBA. मेरे लाइफ चॉइसेस थोड़े वियर्ड है, बट दैट डजंट मीन दैट मेरे पास कोई पाथ नहीं है. मैंने उनको आंसर इस तरीके से किया कि मैंने बताया कि इससे MBA मुझे कैसे हेल्प करेगी. कि आप जो भी उनको आंसर दो, आप अपने लाइफ गोल से MBA को कैसे रिलेट करते हो वो बताओ. आप उनको ये एक्सप्लेन करो कि आपको क्यों MBA चाहिए. आप जो भी अपने बारे में बताओ, उसके साथ MBA कैसे अलाइन करती है. वो आपका काम है सोचना, क्योंकि आपकी लाइफ के बारे में मैं नहीं बता सकती. मेरे LBS के इंटरव्यू में मुझे GK नहीं आती थी. मेरे 4 के इंटरव्यू में मैं एक्सटेम्पोर में ब्लैंक थी. आई स्टिल मेड इट इनटू बोथ ऑफ दीज कॉलेजेस बिकॉज दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू नो एवरीथिंग. They just want to check your confidence, your communication, and whether you deserve that seat or not, whether MBA will add on to your life or not. तो अगर आपको थोड़ा बहुत 19-20 हो भी गया तो डरने की कोई जरूरत नहीं है. बस अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना, जो कि मैंने किया. इस वजह से मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया. अपना कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखो, स्पेशली आपका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है. अगर आप अपने इंट्रोडक्शन में ही फंबल कर गए ना, then that won't look good. उससे आपकी ऐसी इमेज बनेगी कि आपको अपने बारे में ही नहीं पता ढंग से, तो फिर वो एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करेगा. तो मेक श्योर दैट यू आर रिहर्सिंग योर इंट्रोडक्शन. आप मिरर के आगे प्रैक्टिस करो. आप थोड़ा अपने ग्रेजुएशन से रिलेटेड, आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट से रिलेटेड थोड़ा बहुत कुछ पढ़कर जाओ. आपके जो भी इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज चल रही है वो सब पढ़ के जाओ. हॉट टॉपिक्स न्यूज के क्या चल रहे हैं वो सब पता होने चाहिए.
एंड आपको MBA क्यों करनी है, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ क्यों अलाइन करती है कोई, एंड वो जो पर्टिकुलर कॉलेज है वो कॉलेज क्यों चूज करना है आपको। तो आपको ये सब बेसिक चीजें प्रिपेयर करके जानी है, बाकी तो भगवान के हाथ में होता है, बाकी कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट। दीज वर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स दैट यू शुड नो फॉर एन इंटरव्यू। दैट वाज इट। आई होप दैट दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू गाइज। टेंशन मत लो, अगर मेरे जैसे बैकग्राउंड का कैंडिडेट फीडबैक कर सकता है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयरिंग वेल, दैट यू हैव जस्टिफिकेशंस फॉर एवरीथिंग। नो मैटर व्हाट, डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस बिकॉज दे डोंट वांट अंडर कॉन्फिडेंट पीपल, एंड ट्राई टू शो देम दैट यू आर ईगर टू लर्न। आप सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, आप नॉलेज के लिए आ रहे हो, ये शो करना है उनको। या आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइज। मुझसे जिसने भी GDPI के बारे में पूछा, मैंने यही सब बताया उसको। दिस वीडियो इज एन इलैबोरेटेड फॉर्म ऑफ दैट टेक्स्ट। इससे ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बता सकती। अगर मुझसे नेक्स्ट टाइम कोई पूछेगा GDPI के लिए क्या करना है, तो मैं सीधा इस वीडियो का लिंक देने वाली हूँ उनको, और आपको भी यही करना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो मुझे प्रॉमिस करो कि आप ये वीडियो आगे शेयर जरूर करोगे, बिकॉज दिस इज अ नॉलेज बेस्ड वीडियो। आई वांट योर सपोर्ट फॉर दिस बिकॉज आई वांट टू हेल्प एज मेनी पीपल एज आई कैन थ्रू दिस वीडियो। ज्यादा शेयर करोगे, लाइक कमेंट करोगे, यूट्यूब के एल्गोरिथम को उतना अच्छा लगेगा ये वीडियो और उतनी स्प्रेड होगी। So make sure to do that, and if you want to know कि ये सब इंटरव्यूज क्लियर करने के बाद मैं 4 में कैसी लाइफ जी रही हूँ, तो make sure to check out my MBA life की playlist. If you are new to my channel, I'm not someone who makes such type of videos regularly. You can expect more MBA related videos in the form of my personal experience, because I am not somebody जो कि सिर्फ यहाँ पर ज्ञान देने आया है, and I don't mean it in a negative sense. बट मेरी सारी वीडियोस ऐसे सिट डाउन नॉलेज रिलेटेड वीडियोस नहीं होने वाली। मैं अपनी लाइफ ब्लॉग्स के थ्रू दिखाऊंगी, एंड ऑल्सो ब्यूटी कंटेंट भी बनाती हूँ मैं। सो मेरी लाइफ की तरह मेरा चैनल भी डाइवर्स है बहुत ज्यादा। दैट वाज इट अबाउट दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। आई होप यू गेट योर ड्रीम बी स्कूल। एंड अपने इंटरव्यू के बाद इसी वीडियो के नीचे मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा गया। या विद दैट आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। बट विद द हेल्प ऑफ माई ब्रदर आई स्टार्टेड अ बैग बिजनेस. I quit that, and after that so as you've read of influencer marketing, so कोई थोड़ी सी देर रुकना पड़ेगा आपको। 10-15 मिनट। थैंक यू।